Recording in progress. In the previous class, we just finished the kinematics part of the curvilinear motion. Now next, we have to start with the kinetic parts of the curvilinear motion. So equations of the motion of a particle which relate the force, mass, and the acceleration of the particle is called the kinetic quotient. And the acceleration of a particle moving in a curvilinear path is a vector quantity which can further be revolved into the two components which are mutually perpendicular to each other. So AX and the AY are the directions of the coordinate axis and the X and the Y respectively है कि X and Y origin से जो डिवाइड है दो एक्सिस हैं उसमें जो भी curvilinear motion है उसके according you have to divide the components of the acceleration also in the x direction or in the y direction, or further acceleration of the component can be divided into the tangent portion and the normal to the path. The दो portion में we can also divide the acceleration portion. So AT and the AN are also the direction of the tangent and the normal to the curve respectively AT and the AN. And now the equation of the motion can further return depending on the set of the component of the acceleration, जो कि in the following section we will explain. So equation of the motion अगर rectangular component पे if you are going to consider तो उसके लिए you have to consider a system of force acting on a particle P. ये particle P है उस पे जो system act कर रहा है, then we have to resolve the forces in the x direction or the in the y direction. So sigma fx is the summation of all the forces which are acting in the x axis, and summation xy is the summation of the forces acting over the along the y axis, right? And now this is equal to the particle P है again max and may. So ax is the component of the acceleration in the direction of the x, and ay is the again component of the acceleration in the y direction. Now you have to apply the Newton's law. So according to Newton's law, sigma fx is equal to m into ax, means कि जितने भी summation of the forces है in the x direction is equal to mass into जो acceleration हो रहा है हमारा x direction में, right? और अगर आप y के अकॉर्डिंग निकालोगे तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई, राइट? तो एक तो आपने काइनेटिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन में भी अगेन आपने दो इक्वेशन पढ़ी थी, एक तो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग थी जो कि हमारी डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग है. सेकंड वन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें कि वी हैव टू अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ. दोनों के थ्रू खाली कॉन्सेप्ट वाइज दोनों अलग हैं, अदरवाइज जो उसका रिजल्ट आता है इट रिमेन्स दी सेम. So now equation of the motion in the form of the tangential and the normal component के फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो acceleration के components को तो उसको कैसे लिखोगे? So sometimes it is convenient to resolve the forces which is acting over the particle into the components ft or the fn, right? So ft is the component जो कि हमारा along the tangent of the path, and fn is the component जो summation of the fn होगा is the component along the normal to the path and always directed towards the center of the curvature of the path. ये previously discuss कर लिया था. तो again जो curvilinear motion है, एक पार्टिकल जो है वो कर्विलिनियर पाथ जो है वो ट्रेस करता है, तो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो पार्टिकल है उसका मास m है. टेंजेंट की डायरेक्शन में जो समीशन ऑफ फोर्स लग रही है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ft, और नॉर्मल डायरेक्शन में जो उसके पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है दैट इज द सिग्मा f इनटू n, एंड दिस शुड इक्वल टू दी जो m इंटू at है उसी सेम डायरेक्शन में जो उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी और उसकी जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगी. तो अगेन इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ तो ft इज इक्वल टू m इंटू at आ जाएगा. सम ऑफ द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हमारी टेंजेंट डायरेक्शन में लग रही है is equal to मास जो है पार्टिकल का into the component of the acceleration along the tangents to the path, उन सभी का जो समीशन होगा, राइट? And if a particle is moving in a curved path of the radius of curvature rho है, अगर आपने डिफाइन किया हुआ है having the velocity v at any instant, then जो tangential component of the acceleration है it is equal to the dv divided by dt, और an जो है उसका component it is equal to v square divided by the rho. v is the velocity or the speed, rho is the radius of the curvature. तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है इक्वेशन ऑफ द मोशन
sigma ft is equal to m into at, उसको you can also write sigma ft is equal to m into at को you can write dv divided by the dt, और sigma fn is equal to m into an, और you can also write sigma fn is equal to, यहाँ पे you have to put the value of the an, तो वो आपकी इक्वल हो जाएगी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय दी रो इनटू m भी आएगा, यहाँ पे m मिसिंग है, राइट। So when a particle is moving in a circular path, then rho is the radius of the circle, and if it is moving at the rate of the constant velocity, then at is equal to the 0, क्योंकि v यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो dv डिवाइडेड बाय dt जो है वो 0 हो जाएगा, dv डिवाइडेड बाय dt जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो at की वैल्यू जो है वो हमारी 0 हो जाएगी। So whether to resolve the forces and the acceleration into the rectangular component में करो और normal और tangential component में करो, depending upon the problem of the nature problem to be solved, but जो solution उसका आएगा it remains the same, उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, कोई भी दोनों इक्वेशन आप उसमें यूज कर सकते हो। Now next we have the equation of the dynamic equilibrium or the D'Alembert principle. So similarly in case of the rectilinear motion में जैसे आपने consider किया था, same the curvilinear motion can also be described using the D'Alembert principle by the equation of the dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium में क्या है कि rectangular component में आपने equations को कैसे define किया था, sigma fx की x डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसका समीशन इज इक्वल टू m इंटू उस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है उसका प्रोडक्ट विद द मास, राइट। तो सिग्मा fx इज इक्वल टू m इंटू ax और सिग्मा fi इज इक्वल टू m इंटू ay। दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज सिग्मा fx प्लस माइनस ऑफ m into ax is equal to 0, and now this minus m into ax or minus m into ay is called the inertia force, and these two equations are called the equations of the dynamic equilibrium, where these two value minus m into ax and minus m into ay are called the inertia force, which is added to the system of the forces जो कि उसके पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं, एंड ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन जो कि ax और द ay से डिफाइन करते हैं, राइट। तो कोई भी अगर इक्वेशन ऑफ द मोशन है या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन देते हैं, उसमें अगर आप उस पार्टिकल के ऊपर जितना भी आपकी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसके अंदर अगर आप इनर्शिया फोर्स को एक्ट कर दोगे, बट जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इनर्शिया फोर्स होगा वो ऑलवेज इन द नेगेटिव डायरेक्शन होगा और नेगेटिव साइन के साथ होगा, उसको ऐड करने के बाद जो उसका टोटल जो वैल्यू होगी इट रिमेन्स द सेम जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू जो रिजल्ट आ रहा है, राइट। और इन द नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट में अगर आप एक्सीलरेशन को डिवाइड कर रहे हो तो सिग्मा एफ टी इज इक्वल टू एम इंटू ए टी एंड सिग्मा एफ एन इज इक्वल टू एम इंटू ए एन। अगेन इस सेम इक्वेशन को वी कैन राइट दी सिग्मा एफ टी प्लस माइनस ऑफ एम इंटू ए टी इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ एन प्लस minus of m into an is equal to 0. Again this is called the equation of the dynamic equilibrium, where again m into at and m into an both are with the minus sign are the inertia force which is added to the system of the forces which is acting over the particle and in the direction opposite to the direction of the acceleration, जिसमें at और the an हमारा वर्क कर रहा है। इसको विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम भी आप समझ सकते हो कि दिस इज द पार्टिकल, दिस इज द कर्वीलिनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल p एट एनी इंस्टेंट। आपने देखा कि x डायरेक्शन में सिग्मा fx एक्ट करी है, y डायरेक्शन में जो है सिग्मा ऑफ fy जो है वो एक्ट करी है। अगेन जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा m into ax which is called the inertia force, और जहां पर सिग्मा fy एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स है वो एक्ट करेगी। सेम इसको आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपने टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट लेना है, तो अगेन जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है सिग्मा एफ टी उसी डायरेक्शन में ए डी है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एम इंटू ए टी आ जाएगा। सिग्मा एफ एन जो है हमारा वो नॉर्मल टू दिस पॉइंट है और ऑलवेज टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो उसी डायरेक्शन में हमारा ए एन होगा और जो इनर्शिया फोर्स है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इज इक्वल टू दी पार्टिकल पी जो कि एट रेस्ट पर है।
तो ये चारों इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ टी इज इक्वल टू 0 एंड द सिग्मा एफ एन इज इक्वल टू 0, राइट। तो कर्वीलिनियर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई भी जैसे कर्वीलिनियर मोशन है उसमें पार्टिकल कोई भी एक्ट कर रहा है तो अलोंग द टेंजेंट जो एक्सेलरेशन होगा वो at होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जो होगा वो an होगा। ये पाथ इन ए वर्टिकल प्लेन है और ये पाथ इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन है। उसमें जो उसका वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर जो होगा वो हमारा an एक्ट करेगा और टेंजेंट के अलोंग जो होगा वो at एक्ट करेगा, राइट। So the weight of the particle mg act in the plane of the motion only when the particles move in a vertical plane. When the particles move in a horizontal plane, it acts in a plane normal to the plane of the motion, right? So the normal acceleration an of the particle is always directed towards the center of the curvature. ये हम already discuss कर चुके हैं। at की value is equal to dv divided by dt और an की value is equal to v square divided by the rho हम consider करेंगे। यहाँ पे अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ को कैलकुलेट करते हो एट एनी पॉइंट, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1 प्लस dy डिवाइडेड बाय dx का स्क्वायर तो 3/2 होल डिवाइडेड बाय d स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, राइट। and now these two equation d square y divided by dx square and the dy by dx are to be determined from the equation of the curve। उसी से हम उसको डिफाइन करेंगे। एंड इन केस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो उसका रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा वही उसके रो के इक्वल होगा, राइट। और उसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है इट इज द dv डिवाइडेड बाय dt। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट वही दिया हुआ है इसका कि आप उसकी जो इक्वेशंस है वो कैसे कैलकुलेट करोगे। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए स्मॉल बॉल ऑफ वेट w is held by the two wires जो कि नेक्स्ट फिगर में अभी दिया हुआ है। Now you have to find out the tension in the wire AB before the wire CB cut and after the wire CB is cut, right? तो उसके लिए जो डायग्राम है वो ये है कि एक बॉल जो है वो हैंग की हुई है AB और BC से, राइट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टेंशन जब ये BC जो है बिफोर कट टेंशन क्या होगी और आफ्टर कट टेंशन क्या होगी। तो अगेन आपने क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आप क्या करोगे कि ये जो टेंशन है TCB टेंशन इधर होगी और TAB जो टेंशन है वो इधर होगी। यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में जो है वो TCB है जिसका की एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो विद द हॉरिजॉन्टल लाइन जो TCB का एंगल होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। वही सेम ऑल्टरनेट एंगल इसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ इसका लाइन का एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो उसके सेम होंगे। तो TCB एंड द TAB। अब आपने क्या करना है, सिग्मा FX इज इक्वल टू 0 पुट करना है, सिग्मा FY इज इक्वल टू 0 पुट करना है। सिग्मा FX इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, TCB cos 70 माइनस TAB cos 50, राइट, ये आ जाएगा। तो ये देखो ऊपर सेम वही होगा, TCB cos 70 माइनस TAB cos 50 इज इक्वल टू 0। सिग्मा FI इज इक्वल टू पुट करोगे तो क्या होगा, दोनों का कंपोनेंट होगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो W है वो भी एक्ट कर रहा है तो इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ नेक्स्ट आप क्या करोगे, जो TCB है TCB की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इट इज इक्वल टू द TAB cos 50 डिवाइडेड बाय द cos 70। वहीं आपने ये जो TCB लिखा हुआ है इसमें आपने वैल्यू पुट कर दी into sin 70 plus TAB sin 50 is equal to W। W की वैल्यू आपको गिवन है, TAB की वैल्यू आप निकाल लोगे तो cos 50 की वैल्यू आपको नोन है, sin 70 की वैल्यू आपको नोन है, sin 50 की वैल्यू आपको नोन है, W की वैल्यू आपको नोन है। ओनली यू हैव टू कैलकुलेट द TAB। तो यहाँ से जो TAB के लिए एक्सप्रेशन आएगा वो ये आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.395W, राइट। और when this string CB is cut, then the ball is no longer in the static equilibrium। तो उस केस में a resultant force or the unbalanced force always act on the ball, so resolving the W of the along the line AB, right। ये जो W है इसको भी along the line जो है वो आपने डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो अगेन जो TCB था वो तो कट हो गया, ओनली यू हैव टू लेफ्ट विद द TAB।
तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारी, टी ए बी सिग्मा वाई, तो टी ए बी माइनस में डब्ल्यू कॉस 40, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इजिली यू कैन कैलकुलेट दी टी ए बी। तो टी ए बी की वैल्यू आपको पूछी थी, टेंशन की वैल्यू पूछी थी इन दी वायर ए बी, जब वायर कट नहीं हुई है उस टाइम पे टी ए बी की वैल्यू क्या होगी, और जब वायर कट हो गई है तो उस टाइम पर टी ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से आप उसको कैलकुलेट करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a frame shown in the figure rotate about a vertical axis। जो vertical axis, ये जो rotation है इसके about ही पूरा का पूरा frame जो है rotate करता है, and the coefficient of friction under the block A, ये जो block है is 0.40। now determine the coefficient of friction at the block B if B starts to rise when frame rotates at the 40 rpm, right? तो ये कुछ डिस्टेंस दे रखे हैं 1.6 मीटर 1.2 मीटर, जो ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के बीच में जो टोटल डिस्टेंस दे रखा है। ब्लॉक ए का जो वेट दे रखा है 120 डिग्री जो न्यूटन दे रखा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, 40 आरपीएम के साथ ये रोटेट करती है। ब्लॉक बी का उसमें वेट दे रखा है 80 न्यूटन, राइट। now you have to calculate the coefficient of friction of this block B. So as the frame rotates, the block A tends to move outward, ये जो है ये outward move करेगा, and the friction force act in the inward direction, इसके opposite direction में जो है वो friction force act करेगी। and let the tension T, उसको हमने जो tension in this string show कर रहा है उसको हमने जो T है उससे डिनोट किया है। नाउ कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का जब आप फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करोगे तो क्या क्या होगा वहां पर, ब्लॉक है, ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वेट वो एक्ट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन है, बिकॉज जैसे ही वो रोटेट करेगा जो ब्लॉक है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में टेंड करने की पॉसिबिलिटी है, तो इसके रिवर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। नॉर्मल टू दी फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल जो फोर्स है वो एक्ट करेगी, और टेंशन जो होगी इनसाइड दी स्ट्रिंग वो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, राइट। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक ए। तो यहाँ से अगर आप सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एन माइनस 120 इज इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 120 न्यूटन। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 120 डिवाइडेड बाई जी, ठीक है, जो उसका m है, m इंटू ए एन, राइट, माइनस टी, माइनस में ये फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर, राइट, n की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर। an की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, an के लिए आपके पास अनदर फॉर्मूला है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। v स्क्वायर को आप उसको लिख सकते हो ओमेगा इंटू r, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर हो गया v स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, n की वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ से अगर आप पुट करोगे ओमेगा की वैल्यू आएगी 4.19 रेडियन पर सेकेंड। आर की वैल्यू आपको पता है 1.2 मीटर ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से इजीली यू कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ दी एन। एन की वैल्यू जो है वो आप फर्दर जो इक्वेशन आपने सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट की थी वहां पे अगर आप पुट करोगे तो अगेन यू गेट दी वैल्यू ऑफ दी टी। नाउ यू हैव टू कंसिडर द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द ब्लॉक बी। ब्लॉक बी के लिए क्या है, टेंशन जो है वो अपर डायरेक्शन में होगी, उसका वेट जो है 80 न्यूटन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। इनर्शिया फोर्स जो है उसकी इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है बिकॉज ब्लॉक यहाँ पर है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसकी टुवर्ड्स द ब्लॉक लगेगी, उसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो है N1 फोर्स आएगी, राइट। तो उसके लिए अगर आप कंसिडर करते हो फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द ब्लॉक बी, तो उसमें सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अगर आप पुट करते हो तो N1 माइनस 80 डिवाइडेड बाई जी इंटू ए एन आ जाता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से N1 की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, N1 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई दी जी इंटू 28.1, जो कि हमारी ए एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से जो N1 की वैल्यू आ रही है 229.1 आ रही है। नाउ आपको इक्वेशन बना दी है फॉर द सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उसको आपने जस्ट इक्वेट करना है, तो वो हमारी एक्ट कर रही है टी माइनस 80 माइनस न्यू इंटू N1, राइट।
तो वहां पर एक्स डायरेक्शन बिकॉज ये टूली है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो ब्लॉक है वो यहाँ पर था, तो इसी जो रेफरेंस है इसको ही रेफरेंस लेते हुए हमने इस डायरेक्शन में जो फोर्स ली है वो एक्स हो गई, और इस डायरेक्शन में जो ली है फोर्स वो वाई हो गई। ऊपर जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो ये ब्लॉक है, इसलिए इसके साथ जो अटैच करती हुई ये वाली फोर्सेस होंगी ये एक्स होंगी, इसके ब्लॉक के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी वो हमारी वाई डायरेक्शन में फोर्सेस होंगी। तो नेक्स्ट जब आपने कैलकुलेट किया तो अगेन टी की वैल्यू आपको पता है 80 माइनस म्यू इंटू n1, तो n1 की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली, टी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, तो म्यू की वैल्यू इजिली कैन कैलकुलेट, और वो आ रही है आपकी लगभग 0.566, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके कर्वीलिनियर मोशन की काइनेटिक्स पार्ट में, जिसमें कि ओनली यू हैव टू यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपने क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 आपने पुट करना है। ए एन और ए टी की फॉर्म में अगर आपने लेकर आना है तो ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो होता है, और ए टी इज इक्वल टू डीवी डिवाइडेड बाय डी टी होता है। तो इन चारों इक्वेशन का यूज करके आपने जितनी भी वैल्यूज अननोन है वो फाइंड आउट करनी है, राइट। अटेंड योर रोल कॉल। रोल नंबर 1 आदित्य। आशिमा। प्रेजेंट मैम। अभिनव। प्रेजेंट मैम। ओके आदित्य। प्रेजेंट मैम। ओके आकांक्षा। अनुराग। प्रेजेंट मैम। ओके अनुष्का। प्रेजेंट मैम। ओके आरुषि। आर्यन। आस्था। प्रेजेंट मैम। ओके आयुष। चैतन्य। चंचल। रूपम। प्रेजेंट मैम। ओके धृति। प्रेजेंट मैम। ओके दिव्या। सुंदर गौर। हर्ष गुप्ता। प्रेजेंट मैम। ओके हर्षित चौहान। प्रेजेंट मैम। हर्षित हर्षित चौहान हर्षित गुप्ता। Ma'am, he is present. His Okay, mic is Harshit. not working. ओके हर्षित कुमार। प्रेजेंट मैम। ओके जय कुमार। जय कुमार। प्रेजेंट मैम। ओके कबीर। अच्छा कोई भी ना एक स्टूडेंट ना मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज देना अटेंडेंस का। कार्तिक गुप्ता। मैम चैतन्य प्रेजेंट मैम, माइक नहीं चला था ओके मैम। 12 यस थैंक यू। सीरियल नंबर 12। कबीर मित्तल, सॉरी कार्तिक गुप्ता। नेक्स्ट कार्तिक। प्रेजेंट मैम। मैम कार्तिक गुप्ता ये प्रेजेंट। ओके ए इज प्रेजेंट। बी कार्तिक गुप्ता बी। कार्तिक नेगी। प्रेजेंट मैम। ओके कुलभूषण। कुलदीप। मनीष। मान्या। मुदित। मुस्कान। नमित। निहारिका। निकुंज। Present, ma'am, Niharika. निहारिका ओके। निकुंज। नितिन। मैम मुस्कान भी प्रेजेंट है मैम, उसने चैट में लिख रखा है। ओके एक्चुअली हाँ चैट अभी मैंने देखी नहीं, कोई भी अगर ऐसा बच्चा हो मुझे बता दिया करो, चैट तो मैं लास्ट में देखूंगी वैसे।
मुस्कान प्रेजेंट, निकुंज, नितिन, पंकज, प्राची, प्रियांश, Present, ma'am. Ma'am, Priyansh present. प्रियांशु, रजत, राजीव, ऋषि, Present, ma'am. साहिल, ऋषि, साहिल, सना, शिव कुमार, शिवम, सोहेब, सिद्धांत, Present, ma'am. सिद्धांत, Shoaib, ma'am, Present. present. Shoaib. अच्छा सोहेब प्रेजेंट, सिद्धांत, स्नेहा, Present, ma'am. सोनिका, तक्ष, तरुण, Ma'am, योगेश, Sonika present. सोनिका प्रेजेंट, तक्ष, तरुण, योगेश, जिशान एंड सोबिया. Ma'am, please mark for Arushi 012. Anyone left out?